Students, let me ask you a few questions. But before heading towards the question, just think of your grandparents when they were teenagers. Were they having Android phones in their pockets? Did they count their steps using smartwatches? Or was artificial intelligence at its top height? So the answer is no. Because this is a new generation, the generation of technology. Means the Gen Zs who are using the apps, the devices, the technology, not because it is their choice, but because it is their need. Which means that technology is advancing so fast that we cannot stay away from it. तो क्या स्टूडेंट्स हम वो कॉन्सेप्ट्स या उस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने डिस्कस किए, पढ़ा और उसके बाद हम compete कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए? No students, which means we require a new syllabus, a new concept जो कि आज की पढ़ाई है, आज की टेक्नोलॉजीज के हिसाब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे क्या कोई न्यू बुक्स आई हैं? सो यस, एक्चुअली पंजाब बोर्ड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बुक जिसका जो सिलेबस है दैट इज अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. आज के दौर में जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं तो उसको ईजी करने के लिए वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी फ्रॉम किप्स पब्लिकेशन सीरीज जो आपको हेल्प आउट करेगा नॉट ओनली टू टेक द मार्क्स बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी. पंजाब बोर्ड फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है, देयर आर वेरियस चैप्टर इन्वॉल्व. सो एक्चुअली देयर आर टोटल 9 चैप्टर्स इन दिस बुक और इस बुक में थ्रू आउट जितने भी हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे दैट आर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, दैट आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज, द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में. तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं. द चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Chapter number 2 is about Python programming. Chapter number 3 is algorithms and problem solving. Whereas chapter number 4 is the computational structures and chapter number 5 is data analytics. The other chapter is emerging technologies and chapter number 7 is legal and ethical aspects of computing system. Whereas chapter number 8 is about online research and digital literacy. Whereas the last chapter of this book is entrepreneurship in digital age. हम टर्न वाइज टर्न हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उसकी अमाउंट कितनी है. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो कि मैं आपको फ्यूचर में जब डिस्कस कर रहे होंगे मैं बताऊंगी कि दैट व्हाट इज एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम. एज वेल एज इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द पेपर पैटर्न एज वेल एज पेयरिंग स्कीम के इन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. So let's start by exploring the chapter number 1, that is Introduction to Software Development. In this chapter, we will be discussing about the software, कि software को हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे कौन से stages हैं जिनको हम go through करेंगे ताकि जो हमारा software है वो design हो सके. Actually that is the software development life cycle. कौन सी methodologies है जिनको हम देखेंगे, planning कैसे हो सकती है, हम अपने software को manage कैसे कर सकते हैं, and when we are going to design that software कौन सी languages use हो रही होंगी या उसकी testing और debugging कैसे करेंगे जब हम complete design बना लेंगे software development का, how we are going to ensure that is it working right or not. So throughout this chapter हम software oriented रहेंगे. In the last of this chapter exercise given है, not only this chapter बल्कि हर chapter के end पे आपको exercise given होगी जिसमें 3 kinds of questions हैं that are multiple choice questions, short questions and long questions. In this chapter there are total 9 multiple choice questions from 1 till 9 और short questions यहाँ पर हैं 7, जबकि long question की मैं बात करूँ so there are total 5 long questions included in this chapter. Now you will be thinking कि technology इतनी advanced हो गई है तो difficult भी तो हो रही होगी, क्या ये इतना कॉम्प्लेक्स है सारा कुछ समझना और इतना ज़्यादा पढ़ना? सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, पंजाब ने जब न्यू टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस करवाई उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम मीन्स द स्मार्ट सिलेबस जिसके अंदर सिर्फ वही टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसके अलावा जो है आपने स्किप कर देना है या सिर्फ आप उसको फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बट यहाँ पर कुछ पार्ट, कुछ टॉपिक्स,
कुछ सब हेडिंग्स जो हैं वो एलिमिनेट कर दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं, विच यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर नंबर 1 में देख लेते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने प्रिपेयर नहीं करने। तो इसमें एक्चुअली 1.5 सब टॉपिक है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। पेज नंबर है इस टॉपिक का फ्रॉम पेज नंबर 9 टिल पेज नंबर 13। इट मीन्स पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 13 तक जितना भी कंटेंट है इस चैप्टर का आपने उसको स्किप कर देना है। और इसी कंटेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज एमसीक्यूज नंबर 7, शॉर्ट क्वेश्चन 6, लॉन्ग क्वेश्चन 1, 3, 4, ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आपने नहीं प्रिपेयर करने। चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग। एज यू नो प्रोग्रामिंग जो है दैट इज द लैंग्वेज फॉर अ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को समझाने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इट इज़ वन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज एंड सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज भी है। पाइथन बिकॉज इवॉल्व हो रही है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं C++, उसके बाद जो वेरियस लैंग्वेजेस आई, अब हम लोग बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं टू पाइथन। तो जैसे हम पहले पढ़ते थे C++, अब हम C++ नहीं पढ़ेंगे बल्कि पाइथन पढ़ेंगे। पाइथन के सिंटैक्स समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके सिमेंटिक्स क्या होते हैं, उसके ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशंस हम कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स चाहे वो लूप स्ट्रक्चर है या कंडीशनल स्ट्रक्चर है हम कैसे बनाते हैं, पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो कि हमें आना भी चाहिए। हम कंप्लीटली पाइथन के बारे में पढ़ रहे होंगे। इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें गिवन है दैट आर 9 MCQs, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड 6 लॉन्ग क्वेश्चन। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कंपैरिजन टू चैप्टर नंबर 1, थोड़ा लेंथी है, मगर अगेन इसका भी जो कुछ पार्ट है वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। देखते हैं कौन सा है। 2.8 दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पेज नंबर 35 एंड 36 के ऊपर ये जो कंटेंट लिखा है, प्लस पेज नंबर 36 से लेकर 37 तक एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट्स का जो टॉपिक है, एंड पेज नंबर 38 पे टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं और इसके लिए जो MCQs हैं जो इन टॉपिक से लिए गए थे और वो भी रिमूव कर दिए गए हैं, दैट आर 6 MCQs, 5 and 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन 1 का A और C पार्ट। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आपने देखना है, पूरा 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूड नहीं हुआ बल्कि उसके सब पार्ट जो कि A एंड C हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3 अबाउट द एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि भाई हमें कोई भी प्रॉब्लम आई, हमने उसको एक्चुअली सॉल्व करना है, हमने उसका आंसर निकालना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग फ्यू ऑफ द एल्गोरिथम्स। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को समझना, उनसे रिलेटेड उनके सोल्यूशन के लिए एल्गोरिथम्स को देखना, उनको डिज़ाइन करना, कौन कौन से एल्गोरिथम्स है, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी किस हद तक है, उसकी टाइप को समझना, वो सॉल्वेबल है भी है या नहीं है, इस चीज़ को देखना। कैसे देखते हैं हम इस चैप्टर में समझ रहे होंगे। अगेन जो क्वेश्चंस हमें गिवन है इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दोज आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 5 लॉन्ग क्वेश्चंस। बट अगेन जो पार्ट इसमें से एक्सक्लूडेड है दैट इज 3.3.3 कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। जो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देख रहे होते हैं प्रॉब्लम्स में, हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज कि वो P है, NP है, NP हार्ड है या NP कंप्लीट है। तो ये जितनी भी टाइप्स हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, ये अब हम नहीं डिस्कस करेंगे। दीज आर नो मोर द पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। तो ये क्योंकि रिमूव हो गए हुए हैं, पेज नंबर 45 से लेके 46 तक जितना भी कॉन्टेंट हमारी एक्सरसाइज में भी गिवन है वो भी एक्सक्लूड है। दैट आर 2 and 4 MCQs। शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी एक्सक्लूड नहीं हुआ, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है। The next is chapter number 4 that is about computational structures। computational structures क्या है कि जिसमें हम लोग different structures को पढ़ते हैं जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उन स्ट्रैटेजीज को, मेथडोलॉजीज को अपना सकते हैं, चाहे वो लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है या ट्री है। सो कंप्लीट जितने भी ग्राफ्स हैं हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, ना सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि कॉन्सेप्चुअली भी हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम 1 till 10, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 1 to 6 एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं दैट आर टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से कोई भी कंटेंट एक्सक्लूड नहीं हुआ हुआ, सारे के सारे जो है वो हमारा ALP का पार्ट है एंड
we have to go through all of the concepts which are included in this chapter. The next comes chapter number 5, that is data analytics. जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं या स्टूडेंट्स अपनी ही परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है और कौन से में बस रिवीजन की ज़रूरत है। तो इस एनालिसिस को करने के लिए वी रिक्वायर सम ग्राफ्स। तो वो ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं जो कि हम अपनी परफॉर्मेंस को विजुलाइज करवा सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, चाहे वो लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कुछ ग्राफ्स हैं। इन शॉर्ट हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स मींस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर स्टडी करना है, कुछ एक्सप्रेशंस को अप्लाई करना है और डेटा को इस तरह प्रिपेयर करना है कि वो विजुअलाइजेशन के लिए कंप्लीट हो सके, हम उसको विजुअलाइज कर सकें। और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन कौन से टूल्स रिक्वायर होंगे वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। इन द लास्ट जो MCQs गिवन हैं दैट आर टोटल 8, एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इट इज 4 एंड देयर आर टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इसके बाद ALP की अगर हम बात करें कि कौन सा कंटेंट जो वो एक्सक्लूडेड है तो 5.3 है, दैट इज बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, जो कि पेज नंबर 74 से लेकर पेज नंबर 79 तक इसकी लेंथ है। इट्स मीन इट इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक और वो कंप्लीट जो है वो एलिमिनेट हो गया। इट मीन्स कि आपको इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड 5.4 जहाँ पर विजुअलाइजेशन मेथड्स आते हैं, इनमें से एक मेथड है दैट इज़ बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट जो है इट इज़ नो मोर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस और इससे रिलेटेड जो कंटेंट एक्सक्लूड हुआ है दैट इज़ MCQs 1, 4, 5, 7 एंड 8, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, all of these questions are excluded from this chapter. The next chapter is chapter number 6, the emerging technologies. Emerging technologies आने वाली जितनी भी एडवांस कंप्यूटर में टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो IoT है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या क्लाउड कंप्यूटिंग है, हम सारी टेक्नोलॉजीज़ जो कि फ्यूचर में आ रही हैं या अब से उनकी हाइप हो रही है, उनका क्या यूज़ है, क्या एडवांटेज है, बेनिफिट क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की, वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर दिस चैप्टर। ऑल्सो हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं जिनको हमें देखना है, मद्देनज़र रखना है और फिर इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं MCQs दैट आर 10, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 9 एंड लॉन्ग क्वेश्चन है 5। अगेन इसमें से जो कंटेंट ALP का पार्ट नहीं है दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में 6.4 इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन जैसे कि आपको पता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइप टेक्नोलॉजी जो कि आ रही है या यूज़ हो रही है, मगर ओवर हियर ये पार्ट जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। माइट भी शायद जो कॉम्प्लेक्स है, स्टूडेंट्स की समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए उन्होंने आपके लिए आसानी की और इस टॉपिक को जो कि फ्रॉम पेज नंबर 92 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है पेज नंबर 95 तक, ये एलिमिनेट कर दिया गया है। और इसी तरीके से ब्लॉकचेन की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या इम्प्लीकेशंस हैं फ्रॉम पेज नंबर 95 टिल 97, इन शॉर्ट फ्रॉम पेज नंबर 92 टिल 97 जितना भी कंटेंट है दैट इज रिमूव्ड। और MCQs 3, 5, 8, शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 ये सब जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है। देन कम्स द चैप्टर 7 दैट इज लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेटा की प्राइवेसी जो है या उसको जो सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं वो कैसे हैं, हम उसकी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई थ्रेट आ जाता है और उसका इम्पैक्ट हमारे डेटा के ऊपर कैसे आता है, ना सिर्फ हमारे डेटा पे बट एट अ इंडिविजुअल लेवल कि जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है अगर तो वो एक्सपोज हो जाए, इनक्लोज हो जाए तो फिर क्या मसले आ सकते हैं सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए, या डेटा की प्राइवेसी जो है वो लीक कैसे होती है, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। देन अगेन एक्सरसाइज इस चैप्टर में भी गिवन है, MCQs हैं 1 से लेकर 10 तक, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 1 to 5 एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस आर फ्रॉम 1 to 4। जो ALP का पार्ट नहीं है एंड दीज आर द पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूडेड कंटेंट, तो ये है द डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट्स 7.3 जो कि पेज नंबर 106 से स्टार्ट होता है एंड 108 पे एंड हो रहा है। ये वाला टॉपिक जो है वो एक्सक्लूड हो चुका है, जिसमें से MCQs नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट कम्स आवर सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक दैट इज ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली हम लोग यूज़ करेंगे वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट्स को, ऐप्स को,
टूल्स को अपने आप को लिटरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को गेट करने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करेंगे. दैट इज़ वन ऑफ द मेथड कि हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, एक्चुअली बाय गोइंग थ्रू द ऑनलाइन रिसर्च. तो इन डिजिटल रिसोर्सेज को जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, और इनको यूज़ करने के लिए क्या क्या एथिक्स है, हमने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है ताकि जो है हम कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न या सिक्योरिटी थ्रेट ना ला सकें. सो ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एमसीक्यूज फ्रॉम 1 to 10. शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम 1 to 8, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम 1 to 5. क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है तो इसमें से कोई भी कंटेंट एलिमिनेट नहीं हुआ. ये जितना भी टॉपिक इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट. देन कम्स द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? दैट यू आर गोइंग टू बी अ बिजनेस ऑनर रादर देन अ बिजनेस सीकर. कोई जॉब सीकर नहीं है आप, बल्कि आपने जॉब्स को क्रिएट करना है, बिजनेस ऑनर्स बनना है, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. अब बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग थ्रू सम ऑफ द बिजनेस सॉल्यूशंस, तो उसके लिए बिजनेस प्लानिंग भी चाहिए कि भाई हमें कोई प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया आया है, हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू आर गोइंग टू द प्लानिंग, उसकी कॉस्ट कितना आएगा, टाइम कितना आएगा, बजट क्या आएगा. फिर आप लोग मार्केट की स्ट्रैटेजीज़ को देखेंगे, इनसाइट्स को देखेंगे, फिर आप जो स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे अपना प्रोजेक्ट आइडिया. एंड जब प्रोजेक्ट आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, नाउ यू विल बी थिंकिंग अबाउट द बजट कि उसका बजट कैसे डिस्कस करना है, फाइनेंसेस कैसे होने चाहिए. तो इसके लिए आपको फाइनेंसेस का भी पता होना चाहिए. तो साइड बाय साइड हम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये भी बताएंगे कि अपने जो बिजनेस है उसको पिच हम कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग स्किल्स. सो कम्प्लीटली हम इस चैप्टर में बिजनेस मैन बनना सीखेंगे, बिजनेस वूमेन बनना सीखेंगे. और इस चैप्टर के लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस गिवन है दैट आर एमसीक्यूज 1 to 10, शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 8 एंड लॉन्ग क्वेश्चन 1 to 5. सो हियर एंड्स आवर होल चैप्टर. इसका जो ALP के अकॉर्डिंग रिड्यूस सिलेबस है दैट इज फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर बिजनेस. जो हम लोगों ने फाइनेंसेस या बजटिंग के रिलेटेड पढ़ना है बिजनेस के बारे में दैट इज एक्सक्लूडेड, वो हम नहीं पढ़ रहे होंगे. और इसके जो पेज नंबर हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 133 एंड एंडिंग टिल 135. और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज में वो भी एक्सक्लूडेड हैं, दैट इज एमसीक्यूज नंबर 8 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम सारे कर रहे होंगे. सो हेयर एंड्स आवर ऑल चैप्टर. होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमारा सिलेबस क्या है फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड कंप्यूटर साइंस का. थ्रू आउट दिस ईयर हम कैसी कैसी टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे होंगे, कौन सी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, एंड एज वेल एज फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके बारे में कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, या उनकी एप्लीकेशंस क्या है, या हम लोगों ने कौन सी प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, कैसे करनी है, कंप्लीटली हम डिस्कस कर रहे होंगे. विच मीन्स कि बहुत इंटरैक्टिव बुक होने वाली है ये, और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने का, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ योर टेक्नोलॉजी. दिस इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर एज वेल एज दिस इज़ द टेक्नोलॉजी जो कि अभी भी यूज़ हो रही है, प्रेजेंट में यूज़ है. सो आप इसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर तो हमारा जो एग्ज़ाम का पेपर है वो कैसा आएगा, उसकी पेयरिंग स्कीम कैसी होगी, उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा. तो चलते हैं स्टूडेंट सबसे पहले देखने के लिए कि आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं एंड टाइम कितना गिवन होगा. सो जो आपका पेपर है कंप्यूटर साइंस का बोर्ड एग्जाम्स का दैट कंसिस्ट ऑफ टोटल 75 मार्क्स, जिसके अंदर दो पोर्शंस होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड द अदर वन इज द सब्जेक्टिव पार्ट. दोनों पोर्शंस के सेपरेट मार्क्स हैं एज वेल एज सेपरेट टाइमिंग्स भी हैं. ऑब्जेक्टिव जो है वो 15 मार्क्स का है, जबकि सब्जेक्टिव टाइप जो है दैट इज ऑफ 60 मार्क्स. तो जब हम लोग दोनों को काउंट करेंगे इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ टोटल 75 मार्क्स. जो टोटल टाइम गिवन होगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने का दैट इज 2 hours and 30 minutes. अब आप सोच रहे होंगे 2 hours and 30 minutes इतना लंबा पेपर है, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स इसमें भी एक्चुअली ब्रांचेस आ जाएंगे. ऑब्जेक्टिव का सेपरेट टाइम है जो कि आपको गिवन होगा दैट इज 20 minutes, जबकि सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 hours and 10 minutes जो है वो गिवन होंगे. आफ्टर 20 minutes ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपसे स्नैच कर लिया जाएगा. इट विल बी टेकन फ्रॉम यू. आपने उन्हीं 20 minutes में MCQ से क्वेश्चंस को रीड करना है, उनके आंसर्स को सिलेक्ट करना है, एज वेल एज
अपनी आंसर शीट की बबल शीट को भी आपने प्रिपेयर करना है, फिल करना है सारे राइट ऑप्शंस को ऑन द बबल शीट। सो आफ्टर 20 मिनट्स आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाएगा और फिर आपको सब्जेक्टिव के लिए टाइम दिया जाएगा, दैट विल बी 2 hours and 10 minutes। इन शॉर्ट अगर मैं इसी थ्योरी को कंक्लूड करूं तो आपका टोटल कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है दैट इज 75 मार्क्स एंड इसके लिए जो आपको टाइम गिवन होगा दैट इज 2 hours 30 minutes। पार्ट 1 की बात कर लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज क्वेश्चन के वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आएगा। तो सबसे पहले आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे और इन 15 एमसीक्यूज के लिए हर जो क्वेश्चन है दैट कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। इट मीन्स के 1 मार्क्स को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव है दैट कंप्राइजेज ऑफ 15 मार्क्स। और ये कहाँ कहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर में से एमसीक्यूज आएंगे। कुछ चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज आएगा, कुछ में से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं एंड कुछ में इवन 2 से ज़्यादा भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। कैसे आएंगे, जैसे कि बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की, इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं जो कि हैं 3 एमसीक्यूज, जबकि चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 6 इसमें से सिर्फ 1 एमसीक्यूज आता है, सिंगल एमसीक्यूज आएगा। जबकि चैप्टर नंबर 5, 7, 8 एंड 9 इसमें से 2 एमसीक्यूज आते हैं, विच मीन्स के चैप्टर नंबर 1 जो है उसको आपने एमसीक्यूज के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज इसी ही चैप्टर में से आ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सब्जेक्टिव का पोर्शन 1। जब आपसे ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा, सब्जेक्टिव का पेपर दिया जाएगा, उसके अंदर मेजर 2 पोर्शन होंगे, एक होगा पार्ट 1 और दूसरा होगा पार्ट 2, मतलब यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड द अदर वन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब मैं पार्ट 2 की बात करती हूँ, सब्जेक्टिव में जो आता है दैट इज ऑल द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि वेरियस चैप्टर्स में से आ रहे होंगे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आगे से 3 पार्ट्स होंगे। मीन्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पोर्शन स्टार्ट हुआ, इसके लिए आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन 3 क्वेश्चंस के आगे से पार्ट होंगे। अगर मैं पहले पोर्शन की बात करूं तो उसमें से जो चैप्टर्स में से हमारा पेपर आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज चैप्टर 1, 2 एंड 8। अगर ब्रेक डाउन करेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 3 क्वेश्चंस एंड चैप्टर नंबर 8 में से जो है वो 2 क्वेश्चंस आते हैं। ऑल टुगेदर ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे आर 9, मगर इधर आपको उन लोगों ने मैंडेटरी नहीं किया कि आपने 9 ही सॉल्व करने, पर जहाँ पर चॉइस होती है ऑफ द 3 शॉर्ट क्वेश्चन कि आप कोई से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्किप कर सकते हैं एंड बेस्ट जो आपको 6 क्वेश्चन आते हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में से जो 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन you have to attempt any of the 6 best answers और हर जो क्वेश्चन है that comprise of 2 marks। 2 marks का एक क्वेश्चन होता है, टोटल इस पार्ट के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 12 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह पार्ट 2 में हम आएंगे, इसमें जो जिन चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं दैट आर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ब्रेक डाउन करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से 3 ही क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड चैप्टर नंबर 7 में से टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। इट मीन्स जहाँ पर भी टोटल कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चंस हो गए, मगर अगेन जहाँ पर भी चॉइस है यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का ही है। टोटल ये पार्ट भी 12 मार्क्स का है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें भी अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि आ रहे होंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 9। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इक्वली आ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 9 सब में से ही 3 क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल टुगेदर अगेन ये भी 9 क्वेश्चंस होंगे एंड आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल मार्क्स इसके 12 होंगे। जब हम इसको कम्प्लीटली डन कर लेंगे इस पार्ट को जिसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो चुके होंगे, यू विल बी एक्चुअली अटेम्प्टिंग टोटल 18 क्वेश्चन। हर पार्ट में से 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया एंड टोटल ये बन जाएंगे 18 और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो जब हम 18 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2, इट मीन्स के जो पार्ट 2 है सब्जेक्टिव का वो टोटल कितने मार्क्स का है, वो टोटल है 36 मार्क्स का। इट्स मीन के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसमें आप 36 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें कुछ ही चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 7। इन्हीं चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। टोटल आपके पास 5 डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे आता है, इंडिविजुअली हर चैप्टर में से आता है। यहाँ पे कोई पार्ट्स नहीं है बल्कि हर चैप्टर में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7,
8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, इसमें से हम कोई से भी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है, दैट आर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स क्वेश्चंस कैरी करते हैं क्योंकि हमने 3 को अटेम्प्ट करना है, 2 की चॉइस है। सो व्हाट इट विल बी ऑफ टोटल मार्क्स, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24। इट मीन्स कि जो सब्जेक्टिव का पार्ट 3 है, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन का, वो टोटल कितने मार्क्स पे है, दैट आर 24 मार्क्स। 24 मार्क्स हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के, 36 मार्क्स हो जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के, 15 मार्क्स हो जाएंगे एमसीक्यूज के। तो ऑल टुगेदर ये आपका सम अप करके कंप्यूटर साइंस का प्रॉपर जो एग्जाम है वो 75 मार्क्स का होगा। आई होप आपको प्रिपेयर समझ आ गया होगा कि हमने सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, और एज वेल एज कौन कौन सा पार्ट जो वो स्मार्ट सिलेबस का है, कौन सा एक्सक्लूडेड पोर्शन है, पेयरिंग स्कीम का पता लग गया होगा, पेपर का पैटर्न कैसे है, पेपर कैसे आ रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक थ्रू आउट दिस ईयर। हम बहुत अच्छे से समझेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की कंप्यूटर साइंस में।